Okay, guys, we have been discussing computer questions, isn't it? So let's try HGP questions today. HGP VR और advanced के questions करेंगे, right? Okay. HGP के करेंगे हम question number 2 and question number 8 and question number 13, right? और question number 17. ठीक है, these are your questions based on what we have discussed so far, है ना, साइन कोसाइन प्रोजेक्शन नेपियर्स पे. ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. तो अपने पास है इन ट्रायंगल ABC 2CA sin A minus B plus C upon 2 is equal to, right, 2CA sin A minus B plus C upon 2. तो बेसिकली ये 2AB 2BC 2CA ये किसमें होता है? एक्चुअली वो कोसाइन रूल में होता है ना. एंड मोरओवर, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए क्या स्ट्राइक होना चाहिए अपने को. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुक एट दिस एंगल. ऐसा कोई भी रूल में नहीं है. नेपियर्स में होता है A minus B by 2, B minus C by 2, C minus A by 2. लेकिन what stands out in this angle? What is the idea here? What is unique about this angle? कि दो एंगल्स एडिशन में है. Always keep this in mind. Whenever two angles are in addition, two angles of triangle are in addition, always try to write it in terms of third angle. माने A plus C को हम लिखेंगे 180 minus B. Always है ना, always make it a habit. Two angles addition में लिखा तो हम इसको 180 minus के इसमें लिखेंगे, right? So what will this become? 2AC sin A plus C minus B. तो ऑलरेडी A plus C is pi minus B. इसमें से और माइनस b करेंगे तो एक और माइनस b, तो pi minus 2b upon 2. so 2CA, अच्छा ये होगा, इसको अगर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, pi by 2 minus b. and what is sin pi by 2 minus b? sin 90 minus theta cos theta. as simple as that है ना. so all you need to do is कि just apply cosine rule या cosine rule को modify करो etc etc. let's just apply cosine rule है ना. 2CA cos b is A square plus C square minus B square upon 2AC. कटेगा. आंसर इज डायरेक्टली A square plus C square minus B square. Right? Option B. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. Right? Let's look at question number 8. We have side A, side B, and angle A is given to us. And he's asking us to find the C. और C के इसमें आपने को क्वाड्रेटिक चाहिए. We need a quadratic in terms of C. Very interesting. Usually अगर आपके पास दो साइड्स और ऑपोजिट एंगल होता, अच्छा ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है. This is a tricky question. When we have two sides and opposite angle, we usually go for sine rule, isn't it? Two sides opposite angle, so we can actually find angle B, etc etc. लेकिन ये ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इन्होंने पूछा C के इसमें क्वाड्रेटिक, तो ऐसा कौन सा रूल है जिसमें C के इसमें क्वाड्रेटिक होता है, या A के इसमें क्वाड्रेटिक, B के इसमें क्वाड्रेटिक? ऑब्वियसली कोसाइन रूल. साइन में तो A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, राइट. नेबर्स में तो कोई क्वाड्रेटिक होता नहीं, प्रोजेक्शन में भी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ कोसाइन रूल में है अपना क्वाड्रेटिक, है ना, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. नाउ इंटरेस्टिंगली अपने पास एंगल A है. You see we have angle A. Since we have angle A, तो हम cosine रूल अप्लाई करेंगे cos A का, which is B square plus C square minus A square upon 2 BC. cos 60 1 by 2, B square 9, C square वैसे के वैसे C नहीं जानते हम, A की जगह 4 16 upon 2 3 into C. 2 कटेगा, 3C is C square minus 7. तो C square minus 3C minus 7 is equal to 0. Is your answer, है ना? Option A. Right? So this was an anomaly where we didn't actually do what we always do, है ना? Two sides and opposite angle. We usually go for sine rule. लेकिन यहाँ क्वेश्चन वाले ने पूछा क्वाड्रेटिक निकालो थर्ड साइड में. थर्ड साइड में क्वाड्रेटिक निकालो. So since it is quadratic, definitely cosine rule, है ना? Okay.
अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। अपने पास है a इंटू cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस c इंटू cos स्क्वायर a बाई 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 3b अपॉन 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3b अपॉन 2। वी नीड टू फाइंड कि a b c आर इन, कि वो a b में होंगे, g b h b एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ रिमेंबर again you see, since we are looking at sine rule, cosine rule, we haven't even discussed half angle formula. Actually ये क्वेश्चन को आप half angle formula से भी कर सकते हो. You will definitely get the answer if you solve this in terms of half angle. लेकिन we have another formula, है ना? We have another formula which converts half angle, है ना? Remember square to double angle वाला formula, right? Square to double angle. Why is it so? क्योंकि हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे, half angle का हमने क्वेश्चंस किया था, लेकिन right now we are discussing sine, cosine, Napier's projection, है ना? तो anyway ये स्ट्राइट होना चाहिए हमेशा आपको। स्क्वायर है, हाफ एंगल है, तो इसको हम डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन। तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 प्लस c इनटू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 इज 3b बाय 2। तो 2 कटेगा, है ना? तो ये आएगा, देखो a प्लस a cos c प्लस c प्लस c cos a इज इक्वल टू 3b। नाउ यू सी a cos c प्लस c cos a cos c प्लस c cos a, ये तो होता है b, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन रूल। तो a प्लस b प्लस c इज 3b, एक b कटेगा, a प्लस c इज 2b, therefore a b c आर इन ab। टिपिकल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। What is he trying to say? The sides of triangle are sin alpha cos alpha root over 1 plus sin alpha cos alpha, where alpha is greater than 0 less than pi upon 2. He is asking us to find greatest angle. Greatest angle क्या है? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डू वी नो? अच्छा, आपके पास तीन साइड्स है, एक है sin alpha, दूसरा है cos alpha और तीसरा है रूट 1 plus sin cos। अच्छा, हाउ डू वी नो कि विच इज ग्रेटर? ग्रेटेस्ट साइड कौन सा, सॉरी ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा? वी हैव बीन गिवन थ्री साइड्स एंड इज आस्क्ड अस टू फाइंड ग्रेटेस्ट एंगल। हाउ डू वी नो कि विच इज ग्रेटेस्ट एंगल? इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन, इन जनरल हाउ डू वी नो ग्रेटेस्ट एंगल? ऑपोजिट साइड है ना, जो ग्रेटेस्ट साइड होगा उसका ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होता है, लेकिन इनमें से कौन सा ग्रेटर है? ये वाला। कैसे? हाउ इज इट सो? व्हाई इज इट सो? अच्छा, 0 और 90 के बीच में साइन जो है, अच्छा साइन 90 पे 1 होता है, इसका मतलब ये जो भी है ये ग्रेटर देन 0 है बट एट द सेम टाइम लेस देन 1। मानिए 0 और 1 के बीच में है और ये भी 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, लेकिन ये जो है ये एक्चुअली 1 से बड़ा, क्योंकि 1 प्लस है और रूट ओवर, अच्छा किसी भी नंबर जो 1 से बड़ा है उसका रूट 1 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब ये जो है ये आपका ग्रेटेस्ट साइड है, सॉरी। तो अगर मैंने इसको a कंसीडर किया और इसको मैंने कंसीडर किया b एंड लेट दिस बी c, सिंस c इज द ग्रेटेस्ट साइड देयरफॉर एंगल c विल आल्सो बी ग्रेटेस्ट। c ग्रेटेस्ट साइड है, उसका ऑपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट होगा। तो सिंस टू फाइंड ग्रेटेस्ट एंगल, अच्छा तीनों भी साइड्स है अपने पास, तीनों भी साइड्स है और एंगल निकालना है, तो कौन सा रूल लगेगा? Which rule do we apply when we have three sides and एंगल निकालना हो? रिमेंबर 3 साइड्स है, एंगल निकालना हो, या तीनों साइड्स का रेशियो भी है और अपने को एंगल निकालना होता, तो रिमेंबर वी गो फॉर कोसाइन रूल। ठीक है, सो cos c is equal to a square plus b square minus c square upon 2ab, right? So a square sin square alpha, b square
cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ, बी केयरफुल, इसका स्क्वायर 1 प्लस sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 2ab। अच्छा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा तो होता है 1 माइनस 1 माइनस sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 2, अच्छा सॉरी, a की जगह sin अल्फा और b की जगह cos अल्फा, 2 sin cos। अच्छा, 1 और 1 कटेगा और sin अल्फा cos अल्फा भी कटेगा, तो बचेगा कुल -1/2। देखो cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो 90 से बड़ा होना चाहिए। और आप तो जानते हैं कि cos 1/2 कब होता है, π/3 पे, और रैदर 60 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम, 180 - 60 व्हिच इज 120 डिग्री, राइट। देयरफॉर ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। तो 17 आंसर्स। इंटरेस्टिंगली लुक्स लाइक जो बीआर का क्वेश्चन है, तो बीआर का एक ही क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस, वो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन जस्ट नाउ। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर sin बीटा cos बीटा रूट ओवर 1 प्लस a sin 2 बीटा। He did say कि a is positive और यहाँ बीटा lies between 0 and π/2, है ना। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, that's the only difference। And he did say कि greatest angle is 120, whatever, it's the same question, isn't it? अपने को ना a ढूंढना है कि a कितना होगा, we need to find a, very simple। रिमेंबर ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है और ग्रेटेस्ट एंगल है 120, ऑलरेडी दे रखा है। सो ये देखो, ये थर्ड साइड में ना 1 प्लस ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था sin अल्फा cos अल्फा, माने sin बीटा cos बीटा, लेकिन ये है accordingly it should have been sin बीटा cos बीटा, you know, according to this question, right? So a sin 2 बीटा is 2 sin बीटा cos बीटा कटेगा, तो a is 1/2, है ना। हमने बस ये वाला फंडा यहाँ यूज किया, लेकिन कैसे कि ये याद रहेगा कि आपने को नहीं, तो यू नो वी शुड एक्चुअली बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कैसे, सेम मेथोडोलॉजी, राइट। ओके, तो हम जानते हैं कि इसको हमने a कंसीडर किया, इसको b और इसको c, और ये ग्रेटेस्ट साइड है तो इसका अपोजिट वाला ग्रेटेस्ट एंगल होगा, है ना। सो सिंस दिस इज ग्रेटेस्ट एंगल, सॉरी, इसका अपोजिट वाला जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा एंड दैट इज गिवन टू बी 120 डिग्री। सो cos c is equal to a square plus b square minus c square upon 2ab, same as earlier question। cos c, cos 120 which is -1/2, अभी किया हमने, a square sin square बीटा plus cos square बीटा माइनस ये वाला 1 plus a sin 2 बीटा upon 2 sin बीटा cos बीटा। अच्छा, ये तो होता है 1, 2 कैंसिल, राइट। -1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ आएगा 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस a sin 2 बीटा इज 2 sin बीटा cos बीटा अपॉन sin बीटा cos बीटा, ये भी कटेगा, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं एडवांस क्वेश्चंस पे, राइट। तो बीआर का एक ही क्वेश्चन है, let's look at advanced questions। एडवांस का 74 अपना हो चुका है, ये मेंस में आता क्वेश्चन। 74 का आंसर ए, वी डिस्कस इस क्वेश्चन। हम करेंगे 75, 76,
77, 78, 79, 80. 81 बाद में करेंगे, एल्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन। 82, 83, 84 and 87, 89 and 90. ठीक है, we'll be discussing these questions, right? Let's look at question number 75. अगर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट होता तो हम उस पर बात करेंगे, है ना, कोई कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अब आते क्वेश्चन नंबर 75 पे। फर्स्ट थिंग, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, सो इमीडिएटली क्या कंडीशन है अपने पास? b is equal to 60 degree, right? Standard result, remember, angle A, angle B, angle C are in AP. Immediately, therefore, angle B 60 degree. है ना, ये standard result है, रखना था अपने को। अच्छा, fine. Then is asking us to find the value of A upon C sin 2C plus C upon A sin 2A. What do you think we should do here? Double angle formula, of course, isn't it? It is sin 2 theta, which is 2 sin C cos C plus ये वाला 2 sin A cos A. अच्छा, what next? अच्छा, C की जगह sin C. अच्छा, डायरेक्ट कैंसिल किया हमने, चलो मान लो। और यहाँ राइट। अच्छा, फर्दर 2 कॉमन। अच्छा, हाँ, a cos c। अच्छा, इसके जगह भी हम, अरे नहीं, हाँ, अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते थे, a cos c, ये cos, हम ऐसे भी कर सकते थे ना, a cos c plus c cos c, प्रोजेक्शन रूल। बट एनीवे, remember, if you start accounting for, you know, वो r वाला, if you start accounting for r, better there be some ratio, वो हमेशा better रहेगा, है ना? So it's always recommended to apply two sign rules, numerator as well as denominator. तो 2r automatically cancel हो जाएगा। अच्छा, तो a की जगह हम लिखेंगे sin a और c की जगह sin c, ये 2 sin c cos c। Similarly, sin c sin a 2 sin a cos a। अब sin a कटेगा, sin c कटेगा, and then 2 common, then now it is sin a cos c plus compound angle formula is sin a plus c। लेकिन sin a plus c क्या होता है? sin a plus c is cos c, sorry, sin a plus c is cos, sorry, already b 16 है तो a plus c has to be 120 और sin 120 कितना होता है? 3/2, तो आंसर इज 2। ठीक है, अच्छा, तो हम a cos c cos a would have applied projection rule, है ना? then it would have been b, लेकिन b is nothing but sin b, right? और ये 2 है तो √3/2 2, मैंने उससे भी would have got the answer, है ना? लेकिन यहाँ देखो हम r कंसीडर ही नहीं कर रहे, बेचारा r, है ना? तो एनीवे गॉट टू बी केयरफुल, है ना? अगर वो डेल्टा वगैरह आ गया ना तो r का रूल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। सो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आई जस्ट बी गिविंग यू आइडियाज हियर। इन ट्रायंगल ABC, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? तो आपने नोटिस किया, इन ऑल द 4 ऑप्शंस वी हैव B plus C on LHS and A on RHS if you look at sides, और ना उसके साथ साथ में एंगल्स भी हैं, cos A/2, sin B plus C/2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले के 2 ऑप्शंस में है B plus C A और नेक्स्ट के 2 ऑप्शंस में है B minus C A। तो एक्चुअली क्या है, हम इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे। लेट्स रीअरेंज these options here. we'll look at option 4. ऑप्शन A B C आपको घर पे करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये B minus C cos A/2 is equal to A sin B minus C/2।
फॉर दिस टू बी ट्रू, टू प्रूव दिस, अगर मान लो अगर ये सही होता, टू प्रूव दिस वी जस्ट हैव टू प्रूव b minus c upon a is sin b minus c by 2 upon cos a by 2। हम इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे और ऐसे वाले क्वेश्चंस हम क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, दिस इनटू cos a by 2, ये ऐसे प्रूव करो करके, है ना, साइन रूल के वक्त हमने किया था। तो बेसिकली क्या है, जब साइड्स और एंगल्स होते हैं, हाफ एंगल होते हैं स्पेशली, देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यू नो we write sides on one side, angles on one side, and then we apply sine rule simply, ठीक है। अच्छा, तो हम LHS को सिंपलीफाई करेंगे। रिमेंबर b की जगह sin b, c की जगह sin c और a की जगह sin a। न्यूमरेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला, सॉरी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, देखो sin c माइनस sin b माइनस है तो cos sin होता है, सिंस हाफ एंगल में कन्वर्ट हो रहा है, नीचे भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 sin a by 2 cos a by 2, ठीक है, 2 कटेगा, एंड रिमेंबर cos b plus c by 2, b plus c by 2 is 90 minus a by 2 और cos 90 minus theta sin theta, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो ये भी कटेगा, अल्टीमेटली बचेगा sin b minus c by 2 is cos a by 2 जो आ चुका है। तो ये आपका आंसर है ना, तो 75 का D और 76 का D, ये आंसर है। व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि ऑप्शन A B C के लिए आपको फाइंड करना है B plus C upon A। अच्छा, C तो गलत है क्योंकि हम ऑलरेडी D प्रूव कर चुके हैं। ऑल यू नीड टू डू इज कि फाइंड B plus C upon A कितना होता है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन 77, right? 77 is a nice question. Let's look at the logic. The sides of the triangle are in the ratio 1:√3:2, ठीक है, 1:√3:2 sides of the triangle, right? इसका मतलब बेसिकली A:B:C is 1:√3:2, ठीक है। So keep this in mind. You have been given ratio of sides, so generally what do? We consider A as k, B as √3k and C as 2k. So since we are looking at competitive exams, you know, we will just do this, simply consider A as 1, B as √3, C as 2, competitive exam है, चले ऑप्शन है ना। अच्छा, इसका मतलब अपने पास साइड्स है या साइड्स का रेशियो भी है, इट डजंट मैटर। अपने को फाइंड क्या करना है, एंगल्स कौन से रेशियो में है। तो बेसिकली अपने पास तीनों एंगल्स पड़े हैं और आपको ना एंगल्स ढूंढना हो, you want to find angles, then what is it that we do? We simply go for cosine rule, है ना, we go for cosine rule। अच्छा, तो हम cos A फाइंड करेंगे, ठीक है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, 7 minus 1 6 अपॉन 2√3 into 2, 2 3 जा, देखो 3 अपॉन √3 होगा √3/2, ठीक है। तो cos A √3/2 कब होता है, जब एंगल A 30 डिग्री हो, है ना। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे cos B, राइट। cos B इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, 6 minus 3 3, sorry 5 minus 3 2 अपॉन 4, 1/2। तो cos 1/2 कब होता है, जब एंगल भी 16 हो। तो क्लियरली A आया 30, B आया 60, इन दोनों का सम है 90, तो एंगल C होना चाहिए 90 डिग्री। So clearly angle A is to angle B is to angle C is 30 is to 60 is to 90, which is 1 is to 2 is to 3, ठीक है। अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, there is a shortcut trick for this question। अच्छा, C is 90 डिग्री, राइट। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, अपना साइड जो है ना 1:√3:2 है। रिमेंबर ये A is to B is to C। Now remember, say we have been given A is to B is to C,
दिस इज इनडायरेक्टली sin A is to sin B is to sin C. क्योंकि रिमेंबर A को हमने रिप्लेस किया बाय 2r sin A 2r sin B 2r sin C, 2r कटेगा, है ना? तो अल्टीमेटली ये जो साइड्स का रेशियो है ना, ये एक्चुअली साइन के रेशियो है, साइड्स का रेशियो सेम है साइंस का रेशियो। या उल्टा भी चलेगा, अगर आपके पास ना sin A is to sin B is to sin C दे रखा है तो हम इसको ना A is to B is to C में लिखा जा सकता है, लिखेंगे भी 1 is to √3 is to 2। बट लेकिन ये जो साइन के वैल्यूज है ना हमेशा फ्रैक्शन में होते हैं, तो हम कोई नंबर से डिवाइड करेंगे, तो कोई भी नंबर पिक करो, जैसे कि 1 √3 2, एक्चुअली √3/2 होता है साइन, तो हमने ना 2 से डिवाइड किया हर जगह, ठीक है? और आपने नोटिस किया साइन ये 1/2 है, साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री, √3/2 कब होता है 60 डिग्री, 2/2 माने 1 कब होता है 90। तो इनका रेशियो निकालो, ये एंगल्स का रेशियो में हमने बदल दिया है, तो 1:2 है ना? तो ये साइड्स का रेशियो इज एक्चुअली साइन का रेशियो, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, तो कोई भी नंबर से हमने डिवाइड किया, जैसे कि 2 से डिवाइड किया हमने, है ना? तो ये 30 60 90 है ना, 1:2 शुड बी। लेकिन ये इसी क्वेश्चन के लिए ये एप्लीकेबल है, दिस मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एनी अदर क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड नंबर्स थे इसलिए ये एप्लीकेबल। अदरवाइज कीप दिस इन माइंड, साइड का रेशियो है, अगर आपको एंगल्स निकालना हो तो द बेस्ट इज गो फॉर कोसाइन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 77 का नहीं, अब आते हैं 78 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। अच्छा, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:1:1। अच्छा, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल रेशियो 4:1:1। सो व्हाट डू वी डू? इसका मतलब रिमेंबर, इसका मतलब एंगल A 4K, एंगल B K एंड एंगल C K, लेकिन इन सबका सम कितना होना चाहिए 180, है ना? लेकिन हम जानते हैं कि A plus B plus C is 180, so 6K is 180, so K is 30 डिग्री। तो वापस डालेंगे, so therefore एंगल A is 120, एंगल B 30 और एंगल C भी 30। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, व्हेन आई डोंट थिंक मे बी आएगा तो भी आ सकता है, जैसे कि रेशियो ऑफ ऑल एंगल्स आर गिवन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट? सिंपल, रेशियो ऑफ एंगल्स गिवन है तो हमने एंगल्स निकाल लिया, फिर आपको पूछा गया कि ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है, acute, right angle, obtuse, etc etc। so what type of triangle is this? obtuse angle triangle है ना, क्योंकि ये एंगल, अरे हाँ, अगर ऑप्शन में obtuse isosceles angle triangle then you have to go for that, है ना? तो obtuse isosceles triangle, ठीक है? अच्छा, लेकिन अच्छा इस क्वेश्चन में लेकिन अपने को फाइंड क्या करना है? then the ratio of longest side to perimeter। अच्छा, we need to find ratio of longest side to perimeter। अच्छा, यहाँ longest side कौन होगा? A is to perimeter is, that means we need to find A, B and A और B C निकालने के लिए अपने पास साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, साइन रूल से हो जाएगा ना? हाँ, अच्छा, यस वेरी नाइस, है ना? ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, व्हेनेवर वी हैव साइड्स का रेशियो, इसको इमीडिएटली आप एंगल्स के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब दिस इज इनडायरेक्टली sin A is to sin A plus sin B plus sin C। sin 120 √3/2, ये √3/2 plus 1/2 plus 1/2, 2 cancel, so √3 is to 2 plus 1। nice 78 का आंसर A। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, साइड्स का रेशियो गिवन है, एंगल्स का रेशियो निकालो, या एंगल्स का रेशियो गिवन है, साइड्स का रेशियो निकालो, या समथिंग लाइक दिस, है ना? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स का रेशियो दे रखा है तो हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम
साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। 79 तो अभी अभी किया हमने 8 सप्लीमेंट। इसका आंसर क्या क्या है? इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन, इज इट, है ना। इसका आंसर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 80 क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के वक्त कवर किया था शायद से, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के वक्त। 79 का सेकंड ऑप्शन है क्या? क्योंकि मेरे इसमें बहुत पुराना वर्कशीट है तो प्रिंट निकल गया, प्रिंट मिस्टेक। अच्छा 80 क्वेश्चन बहुत पहले कर चुके हैं ना, तब अपना क्वाड्रेटिक के वक्त किया था, तो शायद ऐसे क्वेश्चन एक अपना पेपर में भी आ चुका है। देखो एंगल आर 90 है तो p प्लस क्यू भी 90 यानी p/2 प्लस q/2 ये कितना होगा 45, और शायद इसके बाद हमने tan अप्लाई किया था दोनों तरफ से, है ना, tan a प्लस tan b और tan a into tan b, ठीक है। वो सम ऑफ द रूट्स से आपको माइनस dy प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल जाएगा, और वो tan वाला कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 80 का आंसर ए, ठीक है। यू विल ट्राई दिस ऑन योर ओन। अब आते हैं 82nd पे। ठीक है, we'll solve this question in our next lecture.